ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾਵਲ ਬੇਨਾਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 11 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੜੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਫਿਆਜ਼ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਡੋਵਨ ਟਾਊਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2 ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਡੋਵਨ ਟਾਊਨ ਇੱਕ ਭੀੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਭਰੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਦ ਤੱਕ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਦਬੂ ਫੈਲੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਗੰਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਬਕੀਆਂ ਵੀ ਕੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਫਿਆਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੂੰਆਂ, ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਿਸ਼ਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਹਰਦਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ISI ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਆਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਨਚਲੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਗਰਦਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, बुर्का पहन के बाहर निकला करो, मैं तुम्हें बुर्का ला दूंगा। पर तुमने मुझे यहाँ रखा ही क्यों है? क्या श्रीनगर में कोई और इलाका नहीं है जहाँ माहौल ठीक हो, खुली सोच वाले लोग हों? अरे ये सबसे महफूज इलाका है। मैं नहीं मानती। मुझे लोग वैशी और दरिंदे लगते हैं। मुझे बहुत डर लगता है यह लोग मुझे नोच खाएंगे। किसी की ऐसी हिम्मत नहीं। फियाज, मुझे बच्चों की फिक्र सताती रहती है। वैसे तो स्कूल यहाँ खुलते ही नहीं, अगर खुलते हैं तो फिक्र लगी रहती है कि बच्चे सही सलामत घर आएंगे भी कि नहीं। फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाएंगे कि तुम मेरी बीवी हो, इसलिए थोड़ी एहतियात बरतो कुछ वक्त के लिए। मैं कोई नौकर लगा देता हूँ बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए और लाने के लिए, बस ठीक है। हर बारी भरोसा देके ते दिलासा देके फियाज चला जाता, पर प्रीति नूं अंदरे अंदर बहुत डर लगता सी। हमेशा चिंता विच रहिंदी, किसी दिन कोई बुरी घटना ना हो जाए उसका खदशा रहिंदा। हुण उसकी बेटी भी वड्डी लगन लगी सी, उसकी भी बड़ी फिक्र रहिंदी। लोग सिर जोड़ जोड़ के ओदियां गल्लां करदे।
ਇੱਕ ਤ੍ਰੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਦੀ। 2-4 दिनों बाद उस औरत ने उसਨੂੰ पूछ ही लिया, कब से आप लोगों के बीच ये सब चल रहा है? बहुत मुद्दत हो गई। आपने निकाह किया है क्या? हाँ। फिर तुम्हारा आदमी तुम्हें अपने घर क्यों नहीं रखता? उसने एक और शादी की है। तुमने इस्लाम अपनाया है क्या? हाँ, मैं मुस्लिम हूँ। फिर उसे अपने घर में रखने के लिए क्या तकलीफ है? 2 बीवियां रखना तो आम बात है। वो औरत प्रीति ने कह रही सी, मुझे लगता है तुम्हारे साथ निकाह उसने चोरी छुपे किया है। उसके घर वालों को इसका इल्म नहीं है। हो सकता है, प्रीति ने उत्तर दिता। वो जानती सी कि फ्याज ने घर दस्या ही नहीं है। ये पूछो उससे, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आजकल के वक्त में औरत के लिए ऐसे रहना बहुत मुश्किल है। अगर उसने आना जाना बंद कर दिया, तुम्हें खर्चा देना बंद कर दिया, तो क्या करोगी? मेरे साथ वो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे बड़े किस्से होते हैं यहाँ। तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हारे बच्चे मुस्लिम नहीं हैं, कैसे जिंदगी गुजारोगी? मेरी समझ से बाहर है। अल्लाह खैर करे, तुम्हारे साथ सब ठीक हो। बाकी मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ, कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े मेरे पास आ जाना। कह के चली गई ते प्रीति नूं गंभीरता नाल सोचण लई चेतावनी दे गई। उस दिन तो बाद फ्याज कई दिन नहीं आया। प्रीति नूं उस औरत दी गल सच्ची लगन लगी। उसनूं अपना ते अपने बच्चियां दा भविख बर्बाद हुंदा लग्या। सोचदी, अगर फ्याज ने उसनूं छड्ड दिता तां की होवेगा? की करेगी? कित्थे जावेगी? किवें जिंदगी बसर करेगी? बच्चे की करनगे? अपनी गलती दा एहसास हुंदा तां रो पैंदी। क्यों उसने बेटे दे केस कटाए? क्यों अपने ते बच्चों वास्ते बबलू दे मन विच नफरत पाई? मेरी जिंदगी ठीक ठाक चल रही सी, मैं आपे क्यों अग लाई? मैं फ्याज दी गल विच क्यों आई? इसे चिंता ते फिकर ने उसनूं सौण नहीं दिता। उसनूं सारे पासे हनेरा लगा। काले बदल उसकी जिंदगी दे आसमान ते मंडराउंदे दिखे। 10-15 दिन बाद फ्याज आया। प्रीति बहुत गुस्से में सी। 15 दिनों के बाद हमारी याद आई। भूल गए कि नई जगह पर अनजाने लोगों के बीच कैसे रहूंगी? मुझे कश्मीर से बाहर जाना पड़ गया था, कारोबार के सिलसिले से। मुझे बता के नहीं जा सकते थे, वक्त ही नहीं मिला। अब तुम्हें मिलने का वक्त नहीं मिलता। अकेली औरत को जवान बेटी के साथ छोड़कर तुम चले गए। तुम्हें कोई फिक्र नहीं। कम से कम मुझे बता के जाना था। प्रीति गुस्से विच बोली जा रही सी। चलो यार, माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि तुम इतना गुस्सा करोगी। प्रीति, धीरे धीरे अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए। यह मेरे से नहीं हो सकता इस इलाके में। तुम कहते हो ये महफूज इलाका है, पर मेरे लिए ये खतरनाक जगह है। अगर तुम इतनी देर के बाद आओगे तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे हो गया एक बार, आगे से नहीं होगा। ठीक है, पर आगे से ऐसा नहीं करना। रात उथे गुजार के फ्याज चला गया, पर कई सवाल प्रीति दे दिमाग में छड़ गया। प्रीति दे बच्चे स्कूल जाते, पर कई प्रकार के वितकरे सहंदे। स्कूल के उस्ताद भी उन्हां नाल वितकरा करते, जिवें किसी दुश्मन देश के बच्चे होण। एक अध्यापक का काम विद्या देना हुंदा है, बिना किसी जात पात जां धर्म के। जिवें एक डॉक्टर का काम
ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ? ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੀ? ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸਨ। 5000 ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲ ਰਾਜ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏ। ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਸੰਤ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਖਿਚੜੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਹਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਵਹਾਬੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਵਹਾਬੀ ਸੋਚ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੌਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਾਫਰ ਹਨ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਫਸਰ ਨੇਤਾ, ਸਭ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜਦੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਸੀ। ਫਿਆਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਤੰਗੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ। ਫੀਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਧਾਰਿਆ ਕਿ ਫਿਆਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, क्यों मिलना है उसको? मैं उसकी बीवी हूँ, ये उसके बच्चे हैं, प्रीति ने कहा। उसकी तो तुम्हारे जैसी बहुत बीवियां हैं, तुम कौन सी हो? मैं समझी नहीं। देखो, वो एक आयाश आदमी है। 3-4 सिख लड़कियों के साथ उसने गैर कानूनी शादी की हुई है। सबकी जिंदगी उसने बर्बाद की है।
उन लड़कियों को उसने न घर का रखा न घाट का, जैसे उसे तुम्हारी कौम से कोई बदला लेना है। ऐसी मुस्लिम लड़कियों के साथ भी उसके रिश्ते हैं, पर वो तो मेरे से बेहद प्यार करता है, मुझे अपनी जान से ज्यादा समझता है। मेरे लिए वो कई महीने बीमार रहा। तुम क्या प्रीति हो? हाँ। तुम्हारे लिए वो महाराष्ट्र जाता रहा? हाँ। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का? हाँ। अब वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर क्यों? उस पर काजी ने पाबंदी लगा दी है। वो किसी भी गैर मजहब की लड़की के साथ रिश्ता नहीं रखेगा। पर मेरे साथ तो उसने निकाह किया है। उससे निकाह के बाद भी तुम अपने खावंद के पास रही। हाँ, तुमने खावंद से तलाक लिया? नहीं, उसने अपनी मर्जी से मुझे फ्याज के साथ भेजा है। प्रीति, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुमने अगर फ्याज से निकाह किया था तो अपने खावंद के पास जाने से पहले फ्याज से तलाक लेती। तुम खावंद के साथ चली गई, फिर फ्याज को वहां बुलाती रही। खावंद के होते तुमने इसके साथ गलत रिश्ता रखा, फिर तुम इसके साथ आ गई खावंद को छोड़ के। कैसी औरत हो तुम? तुम कभी बीवी बनी ही नहीं। कभी एक मर्द की रखेल बन के रही तो कभी दूसरे की। तुमने आज तक जो किया है उसे चरित्रहीनता कहते हैं हमारी जुबान में। तुमने किसी मर्द से वफा नहीं की, सिर्फ अपनी हवस पूरी करती रही हो। अगर तुम फ्याज से इतना प्यार करती थी, 2 बार इसके साथ भागी हो, अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाई है, फिर तुम्हें इसको छोड़ना नहीं चाहिए था। मर जाती, अपनी जान दे देती, पर अपने प्यार को न छोड़ती। तुमने अपनी सहूलियत देखी और जिंदगी बिताई है। मैं भी एक औरत हूं और फ्याज की चचेरी हूं, तुम्हारी कहानी से वाकिफ हूं। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे खावंद को कोई और औरत बांटे। मैं खुद उसकी शिकायत लेकर काजी के पास गई हूं। तुम्हारा और उसका सारा किस्सा सुनाया है और वो जो कर रहा है गैर शरई है, इस्लाम के असूलों के खिलाफ है। ऐसे रिश्ते एक मुसलमान नहीं रख सकता। यही वजह है कि तुमसे मिलने की उस पर पाबंदी लगाई है। वह तुमसे अब मिलने नहीं आएगा। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? ये तुम्हें सोचना है, अपना इंतजाम खुद करना होगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। जो आज तक करती आई हो वही करो, किसी और की रखेल बन जाओ। आप ये क्या कह रही हैं? ठीक ही कह रही हूं। पहले तुमने फ्याज की जिंदगी में तूफान लाया, फिर अपने खावंद की जिंदगी बर्बाद करके आ गई हो। सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, तुम बच नहीं सकती। अपनी जिंदगी को तुमने बर्बाद तो किया है, अब इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद करोगी। बेहतर यही है कि अपने खावंद के पास वापस चली जाओ। मैं वापस नहीं जा सकती। वो मेरे बच्चों को नहीं अपनाएगा। वो जानता है कि ये फ्याज के बच्चे हैं। प्रीति ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ ਸੀ।
मुझे अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं, मैं भीख मांग लूंगी। ज्यादा मुसीबत हुई तो मर जाऊंगी, पर इन बच्चों का क्या करूं? इन्हें भी किसी के घर में नौकर लगवा दो। ये फ्याज के बच्चे हैं मेरी बहन, ये तुम्हारी गलती है और उसकी हवस की पैदाइश है। वो इनको कबूल नहीं कर सकता, किसी सूरत में नहीं। फ्याज दी बीवी नूं कोई तरस नहीं सी, उसनूं प्रीति तो नफरत सी, जिहड़ी औरत दे नां ते दाग सी। उसने अगों कहा, आज के बाद कभी यहाँ नहीं आना, ना ही फ्याज की जिंदगी में फिर से आने की कोशिश करना। वो अंदर गई ते पर्स लेके आई। पर्स विचों 5000 कढ़ के प्रीति नूं फड़ाए। ये थोड़ा बहुत खर्च रख लो और अपना इंतजाम खुद करो। दोबारा कभी यहाँ आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। प्रीति दे हाथ विच पैसे दे के उसनूं बाहर जाण दा रस्ता विखाया। प्रीति ना उम्मीद होके बच्चों नूं लैके परत आई। सारी आउण वाली जिंदगी उसनूं हनेरी गली जापी। हुण करे ते की करे? किसी यतीम खाने विच बच्चों नूं लैके जाए तां वालदियत की लिखाई। जदों बलबीर ने बच्चों नूं स्कूल विच दाखल कराया सी ते बच्चों दे पिता दा नाम बलबीर सिंह लिखवाया सी। बच्चों दे सर्टिफिकेट ते इहो नां सी, पर श्रीनगर दे स्कूल विच वो सर्टिफिकेट नहीं विखाए सन ते वाकफियत नाल दाखल करवाया सी। फ्याज ने ते अपनी वालदियत लिखाई सी। शक्ल सूरत तो बच्चे कश्मीरी लगते ही नहीं सन ते ना ही प्रीति मुस्लिम लगती सी। ना बोली आउंदी सी, ना वैसा रहन सहन सी। उसकी एक वक्री पहचान सी। कश्मीर के सिख समाज नूं उसदे वापस आउण दा पता चल गया सी कि उसे मुस्लिम बंदे नाल घर वाले नूं छड्ड के 2 बच्चियां नाल वापस आ गई है। समाज विच उस वास्ते अथाह घृणा सी। वो ना किसी रिश्तेदार नूं मिल सकदी सी, ना किसी गुरुद्वारे जा सकती सी, ना किसी आश्रम। उसने अपने समाज के सारे दरवाजे बंद करवा लए सन। जिथे रहिंदी सी उत्थे भी बुरा हाल सी। फ्याज दी बीवी कोलों लए 5000 किन्ने दिन चलने सन। महीने बाद फिर तंगी आ गई। उसने अपनी गुआंढण अगे इल्तजा की कि किते किसी घर विच उसनूं कोई काम दिवावे। कोई भी काम करन लई तैयार है, पर पड़ोसन ने कहा, तैनूं कोई काम नहीं देगा, तैनूं रसोई विच वड़न नहीं देवेगा, तेरे कोलों कोई बर्तन साफ नहीं करवाएगा क्योंकि तू गैर मुस्लिम है। तेरे हाथ लगी किसी चीज़ नूं कोई नहीं खावेगा। फिर भी मैं कोशिश करांगी कि तैनूं कोई काम मिल जावे। कैसे बच्चों को पालोगी? मैं जानती थी तुम्हारा यही हश्र होने वाला है। ये मर्द मतलबी होते हैं। तुम्हारी भी बहुत बड़ी गलती है कि तुमने ऐसे मर्द के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। प्रीति नूं उसदे कीते लई हर कोई दुत्कारदा ते फटकारदा। प्रीति नूं कोई काम नहीं मिलिया। किराया फिर 3 महीने का हो गया। भावें किराया 300 रुपए महीना सी, पर किवें देवे, कित्थों देवे? खाने दे लाले पै होए सन। फ्याज ने आउणा बिल्कुल बंद कर दिता सी ते एक दिन मालिक मकान आ ही गया। शाम दा वेला सी। बोलिया, 3 महीने से तुमने किराया नहीं दिया, ये ठीक नहीं है। कब तक ऐसे इंतजार करूंगा? जल्दी दे दूंगी, कोशिश कर रही हूं, मुझे थोड़ा और वक्त दो। प्रीति ने हाथ जोड़े। और कितना वक्त दे सकता हूं? जिस आदमी ने तुम्हें ये मकान दिलवाया था वो तो अब नदारद है। मुझे लगता है उसका दिल भर गया है।
और उसने तुम्हें छोड़ दिया है। अब उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, वो वापस नहीं आएगा। बेहतर है कोई और रास्ता ढूंढो, हमें खिदमत का मौका दो। क्या मतलब? मतलब आप अच्छी तरह से जानती हो, मैं चिराबन रहता हूँ। यह घर मेरे वालिद का है, वही यहाँ रहते थे। अब मैंने अपना घर बना लिया है। तुम जब तक यहाँ रहना चाहो रह सकती हो, खर्चा भी दे दूंगा। तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता, मर्जी तुम्हारी है। सोच लो, मैं फिर किसी दिन आऊंगा। वो बंदा चला गया ते प्रीति सोचती रही। उस कोल कोई चारा नहीं सी रहा, पर वो किवें किसे मदद कोल जावे। फिर उसके मन ने किया, की फर्क पैंदा है, बबलू कोल जा नहीं सकती। फ्यास ने त्याग दिता है। पोचे बर्तन का कोई काम करवावेगा नहीं, मजदूरी करन दा माहौल नहीं। फिर होर की कर सकती है, किवें गुजारा चलेगा। बच्चे पढ़नों रह गए, बच्चे ਵੱਡੇ हो रहे हैं। अगर इन्हां नूं मेरे नीचपन का पता चलेगा तो फिर की होवेगा। मैं तो इस तरह वैश्या ही बन गई, जिसम बेच के गुजारा चलावांगी। अज ये बंदा है, कल कोई होर आ जाएगा। प्रीति, तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसकी दोषी तू आप है। तेरी ही मत मारी गई। इस तो चंगा है जाके झेलम दरिया विच डुब जा, मर जा। अपने आप नूं कहंदी रही ते खिजदी रही। सारी रात जागदियां ही निकल गई। 3-4 दिनों बाद मालिक मकान फिर आया। उसनूं प्रीति ने अपने कमरे विच बिठाया। बच्चों के खाण वास्ते वो कुछ लैके आया सी। बच्चे खुश सन, किन्ने दिनों बाद कुछ खाण नूं मिलिया सी। चटपटा। ते प्रीति ने हाथ जोड़ के उसनूं कहा, यह रिश्ता मेरे और आपके बीच रहेगा, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। मेरे बच्चे जलील हो जाएंगे। मुझे सहारे की जरूरत है। कल मुझे बेसहारा नहीं कर देना। मैं ऐसी औरत नहीं हूं। मैं 16 साल की थी तब से फ्यास से प्यार किया है। यह अब ऐसे बेसहारा करके छोड़ जाएगा, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। हर आदमी की मजबूरी होती है। खानदान की इज्जत का सवाल होता है। जब तक पर्दे में काम होता है तब तक तो सब चलता है, पर जब सब तरफ मशहूरी हो जाए तो मर्द को अपने पांव खींचने पड़ जाते हैं। फ्यास और तुम्हारा रिश्ता बहुत बदनाम है, सारा शहर जानता है, और वो अच्छे खानदान से है, सैयद है। सैयद हम लोगों में सबसे ऊंची और पाक जात है। चलो, जो होना था हो गया। तकदीर में जो लिखा होता है वही मिलता है। उसने हफीज नूं मालिक मकान समझिया ते फिर जिस काम लई आया सी करके चला गया। प्रीति अज एक होर पौड़ी चढ़ गई, नीचता दी। उसनूं कोई अफसोस नहीं सी। वो समझ गई सी हुण इंज ही जीवन गुजारना है। औरत होवे जां मर्द, जवानी विच ही उसकी जिंदगी दी नींव रखी जाती है। भविख दी सेध उसनूं उसी उम्र विच मिलती है। उस उम्र विच ਜਿਹੜੇ फैसले हुंदे हन उन्हां ते ही भविख निर्भर हुंदा है। कई फैसले बिना सोचे समझे हो जाते हैं। प्यार ते इश्क विच कीते हुए फैसले किते किस्मत नाल ही ठीक हो जाण तां ठीक है, पर ज़्यादातर फैसले जीवन बर्बाद कर देंदे हैं। प्यार करन वालियां दा दिल ही काम करता है, दिमाग नहीं। कुछ चंगा नहीं सोच सकते।
ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ। ਐਸਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਕ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਣ एहसास हो गया सी, पर सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬੇਨਾਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ। 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਵਲ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੋਵਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।